Hi friends, today's our topic is the case of pronouns. कोई भी हमें पूछ सकता है कि what is pronoun? Then we reply him that a pronoun is a what? We use it at the place of noun. But here in this lecture, I am going to tell you about it. See, in Urdu language we say ism zamir. Ism zamir. And where we use it? At the place of noun. What is noun? Noun is ism. Noun is ism. नाम किसी शख्स चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं और इन नामों की जगह पे जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज उसको कहते हैं प्रोनाउंस और इन उर्दू लैंग्वेज वो इससे इस्म ज़मीर. बट हियर इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द केस ऑफ a pronoun can be used as a subject then we say that it is in subjective case. Subjective case. And when we use a pronoun as an object of the sentence, then we say that it is in objective case. As an object, we say that it is in objective case. And sometimes we use these pronouns to show the ownership of someone's, and then we say that it is in possessive case. Possessive case. So this way, subjective case, objective case and possessive case. Today we are going to talk about these three cases. Firstly, I am going to talk about subjective. Subjective case. Like I, we, he, she, it, they. These pronouns we use at the beginning of the sentence. So this way we say that these are all subjective pronouns. Subjective pronouns. Why we say these are all subjective pronouns? Because we use these pronouns at the place of subject. Objective. Yes. In objective case, I का me, we का us, he का him, she का her, it का it और they का them. When we use these pronouns, we use these pronouns at the place of object. So there we say that these are all objective pronouns. हमारा काम जो है इन pronouns से शुरू होता है और जाके खत्म जो है इनके ऊपर होता है. So this way these are objective pronouns and these are subjective pronouns. And now I am going to talk about possessive pronouns. Yes. In possessive case,
आई का होगा माई, वी का होगा अवर, ही का होगा हिज, और शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। ये हो गया पोजेसिव। उसके बाद वन थिंग यू शुड रिमेंबर, ये जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, और ये जो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। आपने क्या करना है इसको, पोजेसिव adjectives, because possessive pronouns, no I am going to tell you what is the difference between possessive pronouns and possessive adjectives. my का होगा mine, our का होगा ours, her का होगा hers, it का होगा its, और देयर का होगा देयर, हिज का होगा हिज, इसका हिज है। तो ये जो है माइन, अवर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, हिज, दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस। These are possessive pronouns and these are possessive adjectives. Because what is the difference between a possessive pronouns and possessive adjectives? Because a pronoun we use at the place of noun, but an adjective we use with noun. अब मैं आपको बताता हूं कि possessive pronouns और possessive adjectives के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो नॉन की जगह पे इस्तेमाल होता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो नॉन के साथ इस्तेमाल होता है, वो नॉन की किसी क्वालिटी के बारे में हमें बताता है। जहां पे देखो आप, ये है माई, ये जो है एडजेक्टिव है, तो ये जो है ये किसी नॉन के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे मैं ये कहता हूं दिस इज माई पेन। अब ये जो माई है ये ऑनरशिप दिखा रहा है पेन के लिए, तो इस तरीके से ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। अब जो प्रोनाउन है वो इस नॉन की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। दिस पेन इज माइन। अब ये पेन मेरा है। अब ये जो है, ये माइन जो है, ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, इस पेन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया ये, लेकिन ये इसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और इसने किसी की खूबी के बारे में या ऑनरशिप के बारे में हमें नहीं बताया है। तो इस तरीके से ये जो होता है इसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, और इसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ के होंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के बीच में क्या फर्क है। जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये किसी नॉन के साथ इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे देखो नॉन यहाँ पे है और ये वर्ब के बाद में जाके इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरीके से ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो नॉन के साथ इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे जो है माई जो है, ये इस पेन जो है यहाँ पे हमारे पास नॉन है, और ये माई जो है ये इसके साथ इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरीके से ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये जो होते इस तरीके से केस में इस्तेमाल किए जाते कि सब्जेक्ट को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे करना है, और ऑनरशिप के लिए इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव के बीच में डिफरेंस क्या है। सपोज हमारे पास एक प्रोनाउन हम ले लेते हैं ही, तो इसको मैंने कहा था कि ये सब्जेक्टिव है। क्या
सब्जेक्टिव है। तो इसको सब्जेक्टिव केस में हम यूज करेंगे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ट्रांसलेटेड, वो एक नगमा गा रहा है। अब व्हाट इज ही जो है ये इसका सब्जेक्ट है। सो दिस वे वी से दैट इट इज ए सब्जेक्टिव केस। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, आ सॉन्ग इज being sung by him। तो him क्या है यहाँ, किस प्लेस के ऊपर आया, ये आया है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट यहाँ पे जो है ये है सॉन्ग। तो ये अब किस केस में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि him जो है ये किसमें, इन ऑब्जेक्टिव केस में। इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का भी मैं क्लियर करता हूं आपको। सपोज दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अब ये जो माई है यहां पे ये क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को। सो दिस वे वी से दैट माई जो है ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब क्योंकि ये नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, अब इसी को इसका जो प्रोनाउन है वो ये है दिस पेन इज माइन। अब आप देखो कि ये माइन जो है ये पेन की जगह पे आ गया है और यहां इससे पहले हमने यहां पे वर्ब का इस्तेमाल किया। सो दिस वे ये जो है ये इसका पोजेसिव प्रोनाउन है। अब आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पोजेसिव केस क्या होता है। अब एक चीज और याद रखें आप कि ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन है इसके बीच में फर्क क्या है कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और ये नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है, और जो पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे लगता है और वो जो है खुद जो है एक ऑब्जेक्ट या कोई भी वर्ड का जो अपनी जगह पे वो पूरा होता है। पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन को हम जो है एपोस्ट्रॉफी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज वहां पे जो है पहले से इसके साथ एस लगा होता है और साथ में एक और एस हम लगाएंगे तो इसका मीनिंग जो है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। ये से इन दिस लेक्चर I talked about subjective, objective and possessive pronouns, and where we can use subjective pronouns, objective or possessive, because ये सभी pronouns जो हैं अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर एक भी प्रोनाउन को हम उसकी जगह से हटा के दूसरे की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, and please like and subscribe my channel. Thank you.